everyone to this online session of English grammar. Today again we are going to see one topic of basics of English grammar, and the topic taught will be clauses. Now if you have seen the second video, there we have seen the introduction of clauses. What are clauses? Clauses are a group of words that contain a subject and a verb, and it makes complete sense most of the times. It's different from a phrase. Why? Because phrase does not have a complete sense and clause does have a complete sense. Now let us go in deep. Let's study in detail what are clauses. So clause is a part of a sentence. Clause क्या होता है? Part होता है एक sentence का. जैसे कि हमने देखा था phrase होता है वाक्यांश, वो वाक्य का part होता है, अंश होता है. But clause is उपवाक्य, one more sentence that can be joined to the original sentence to add up to its meaning. So in language, a clause is a part of sentence that contains a verb. A proper clause consists of a subject and a predicate. A clause can function as adjective, as adverb or noun. Adjective, adverb and noun, what it is? What it is? Noun means when we name something. Adjective means when we describe noun. And adverb means when we describe the verb, of course. Now let's see the example. I graduated last year. We have a subject, we have a verb. I graduated last year. So this is one clause sentence. When I came here, I saw him. When I came here, I saw him. See, there are two clauses in the sentence because two subjects are there. When I came here, I saw him. It's talking about I, but there are two clauses in the sentence. When I came here, I saw him and he greeted me. There are three clauses in the same sentence. Now, how do you define, how do you describe, how do you differentiate? कैसे हम पता लगाएंगे कि एक क्लॉज है, दो क्लॉज है, तीन क्लॉज है? To remove this dilemma, we'll see how to count clauses. A new clause starts when a new subject is introduced. एक clause तब start होता है जब subject introduce होता है. Watch for the conjunctions. Basically what you can do, you can see the conjunction. जहाँ भी आपको conjunction दिखे, conjunction क्या होता है? दो वर्ड से बना है, co and junction. जहाँ पे joining words use हो रहे हैं, वहाँ से भी क्या होता है? न्यू क्लॉज स्टार्ट होता है. बट फाइंडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ मोर रिलायबल. पर ज़्यादा विश्वास करने लायक क्या है? जब आप सब्जेक्ट खोज लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंस डॉग स्टडीड ही डिड वेल ऑन द टेस्ट एंड वॉज हैप्पी. सो सी, second subject starting, thus we can differentiate. That's how we can count clauses. Now हमने देख लिया कि क्लॉज क्या है. उनका खुद का सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है. कभी कभी कंप्लीट सेंस देते हैं, कभी नहीं देते हैं. कई सारे क्लॉजेस होते हैं. तो ये होते क्या है? कहाँ पर एक क्लॉज है, दो क्लॉज है, कैसे कंप्लीट सेंस देता है, कैसे नहीं देता है? टू सी ऑल दिस वी हैव टू सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. वन दैट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो एक सेंटेंस की तरह अकेले काम कर सकता है. और एक डिपेंडेंट क्लॉज जो कि सेंटेंस में सपोर्टिंग पार्ट प्ले करता है. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो तो खुद में एक सेंटेंस है, पर ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो उस सेंटेंस का पार्ट है, उसके साथ जुड़कर उसको एनहांस करता है. तो बहुत सारे रोल प्ले करता है वो जो दूसरा वाला क्लॉज है, डिपेंडेंट वाला. तो वो कौन कौन से रोल प्ले करता है? या तो वो नाउन का रोल प्ले करता है, या एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, या एडवर्ब का रोल प्ले करता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ऑल दिस. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको इन डिटेल में पहले पढ़ते हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है it functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. जो independent clause है वो खुद पे function करता है, अपने आप में वो complete sentence होता है, meaningful sentence होता है, और उसको देखने में भी लगेगा कि वो क्या है? एक regular sentence है. अब हम जब दो रेगुलर सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, तो हम कोऑर्डिनेटर्स को यूज़ करते हैं. जिन कंजक्शंस को हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटर या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और वो कंजंक्शन हैं कौन कौन से? एंड, बट, सो, और, नॉट, फॉर, येट. एग्जाम्पल्स: ही इज़ अ वाइज मैन,
डू इट प्लीज, सब्जेक्ट इज हिडन, ये सब सिंगल सिंगल है. बट सी द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, आई वॉन्ट टू बाई अ फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी. आई वॉन्ट टू बाई अ फोन अपने आप में कंप्लीट है, आई डोंट हैव इनफ मनी अपने आप में कंप्लीट है, पर दोनों को ज्वाइन किया हुआ है किससे? बट से. सिमिलरली द नेक्स्ट वन ऑल्सो. सी नाउ डिपेंडेंट क्लॉज. सी द नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल यू हैव नॉट सीन. Wait, the independent clause, the last example, Alex smiles whenever he sees her. See, there's one independent clause, Alex smiles whenever he sees her. Now ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में सेंटेंस है, ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. पर जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है वो कैसे, कौन सा रोल प्ले करेगा और आप कैसे पहचानेंगे, तो वो देखते हैं. जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अपने आप में फंक्शन नहीं कर सकता है. वो जो आइडिया होता है, जो भी आइडिया देता है, वो अनफिनिश्ड होता है या इनकम्प्लीट होता है. इसको और क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस. जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हेल्प करते हैं कंप्लीट सेंटेंस बनाने में. डिपेंडेंट क्लॉज अलोन कैनॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस. जो डिपेंडेंट क्लॉज है अकेले कंप्लीट सेंस नहीं फॉर्म करते हैं. द सब ऑर्डिनेटर्स डू द वर्क ऑफ कनेक्टिंग द डिपेंडेंट क्लॉज टू अनदर क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो सब ऑर्डिनेटर्स क्या है? जो कंजंक्शंस यूज होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए. किनको? डिपेंडेंट क्लॉज को बाकी सारे क्लॉजेस से. उनको क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेटर्स कहते हैं या फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं. एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच. आई नो द मैन विच मैन? हु स्टोल द वॉच. सो हु इज अ कंजंक्शन हियर. अदर टू एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू. डिपेंडेंट क्लॉजेस की एक खासियत होती है कि ये कभी खुद में नहीं कंप्लीट मीनिंग दे सकते. दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. और इवन अगर उनमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो उनके आगे कंजंक्शन लगा होता है, thus वो फिर से इनकम्प्लीट हो जाते हैं. एग्जाम्पल, अनलेस यू वॉन्ट टू गो. यू वॉन्ट टू गो इज कंप्लीट. सी देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ वर्ब, मीन्स कंप्लीट इट इज. बट अनलेस इट मेड इट इनकम्प्लीट. वो कंजंक्शन लग जाने से वो इनकम्प्लीट हो गया. आई केयर इज कंप्लीट, but because I care, again it's incomplete. So डिपेंडेंट क्लॉजेस कैसे होते हैं? क्योंकि कंजंक्शंस होते हैं, इस वजह से they cannot stand them by themselves and they do not express complete thought. अब तब से कंजंक्शन क्या कंजंक्शन what is conjunction? Conjunctions are words that join words, clauses or phrases. जैसे and, but, Rob and I went to the movies. See, the examples have been given for you. Now, the types of dependent clauses. What are the types of dependent clauses? We have seen the dependent clauses or the subordinate clauses are used in many ways. Which ways are they used in? Adjective clause. It is first how it is written. How do you recognize? So for recognition, it is introduced by relative pronoun. Who, whom, whose, which, that, when, where, whomever, whoever, whichever. Don't worry, noun, pronoun, conjunction, adjective, adverb, every type we will see in detail from the next video onwards. Just go through it and please pause the video, slow it down and study it. That's very important. These are the basic things. नाउ एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. वैसे ही यहाँ पर भी ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. ठीक है. ही हु कम्स अर्ली गेट्स द बेस्ट स्लाइस ऑफ रोस्ट बीफ. वो कौन? वो जो पहले आता है. तो यहाँ प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. वन थिंग दैट अनॉयज मेनी पीपल इज नॉइज. तो एक चीज़ नॉइज जो है वो क्या करता है? इट अनॉयज मेनी पीपल. तो डिस्क्राइब कर रहा है नॉइज को. तो जब भी ये किसको डिस्क्राइब करें, नाउन को या प्रोनाउन को, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. और उसका एक सिंबल होता है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस होता है. लाइक हु, हुम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, whomever, whoever, whichever. Adverb clause. Adverb clause is introduced by subordinating conjunctions and they modify verb, adjective and adverb. Adverb का काम ही होता है, जैसा कि नाम है adverb, verb को modify करना. तो इसका काम क्या है? Verbs को modify करना. बाकी
एडवर्ब्स को मॉडिफाई करना या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना. The audience will be allowed to come inside auditorium as soon as the clock strikes 7. तो audience जो है will be allowed to come. ठीक है, verb है will be allowed to come. कब? As soon as the clock strikes 7. So ये describe कर रहा है किसको? Verb को. When Mackie received my letter, she was overjoyed. Overjoyed, this feeling it's describing. When was Mackie overjoyed? When Mackie received my letter. Noun clauses. Noun clauses are introduced by words like what, when, how, why or that. Most often they function as subject या फिर object, क्योंकि noun है तो या तो ये subject होगा या तो ये object होगा. Why she does not speak to anyone should be the concern of her parents. उनके parents का क्या concern होना चाहिए? Why she does not speak to anyone. Nouns. Now dependent clauses are described here. See, adverb, adjective and noun definition is given here. An adverb clause is used like an adverb and it modifies verb, adjective or adverb. These begin with the subordinating conjunction. Adjective clause, it's used to modify a noun or pronoun. It begins with a relative pronoun. Noun clause, it's used as a subject or it's used actually in place of noun or an object. So noun clauses begin with relative pronoun and can be replaced with it or someone. Now, the very crucial thing, difference between phrase and clause. What's the difference between phrase and clause? Phrase do not have a subject and predicate. अगर दोनों हो जाएगा तो sentence या clause बन जाएगा, but clause has. Phrase cannot convey a complete thought, but clause does sometimes जब वो independent होगा. Phrases cannot stand alone, independent clauses can stand alone. तो ये फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस जो भी है, आई होप आज के बाद आपको क्लियर होगा. अगर नहीं क्लियर होगा, यू कैन गो बैक टू अगेन द बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इज अबाउट फ्रेजेस एंड दिस लेक्चर 4 is about clauses. That's all about this video. Also we have questions. See, these are the things you can have to define what we have studied in this video. You have to define all this with example. Also, these are some more questions. Differentiate between phrases and clauses. What are conjunction? Name 10 conjunctions. How are they used in clauses? कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं. और खुद के 10 सेंटेंस बनाइए, उसमें सब्जेक्ट अंडरलाइन करिए, प्रेडिकेट अंडरलाइन करिए और क्लॉजेस फाइंड आउट करिए. एक क्लॉज वाले सेंटेंस नहीं, कई सारे क्लॉज वाले सेंटेंस बनाइए और उसमें क्लॉजेस फाइंड आउट करके मार्क करिए. वी विल हैव अ क्विक रिविजन. लेट्स रिवाइज. स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा था? क्लॉज है जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों कंटेन करता है, जो दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. जो इंडिपेंडेंट है उसे प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज भी कहते हैं. जो डिपेंडेंट है उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो आगे चल के भी 3 टाइप्स में होते हैं, जैसा कि इनका यूसेज होता है सेंटेंस में. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. और फिर इन सारे की डेफिनेशन देखी हमने विद एग्जाम्पल. उसके बाद हमने देखा फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है. I hope after this video you'll be able to understand thoroughly what is phrase, clause and sentence और इन तीनों में difference क्या है, कब कौन सा कहाँ यूज़ होता है. That's all for this lecture. Thank you so much. Have a good day.